Good morning, student. In our last class, we discussed about the basic portion of the chapter 6, square and square root, and also solved the two questions of the first exercise, question first and second. And today we start from the question number third. In this question, what they ask, the square of which of the following would be odd number? इनमें से नंबर का स्क्वायर करने पे जो स्क्वायर मिलेगा इन नंबर का कौन सा ऑड नंबर होगा एंड विच वन इज द इवन नंबर. फॉर एग्जांपल, इफ वी डू द स्क्वायर ऑफ 4 वी गेट 16. So the square of 4 is even number, and same way if we do the square of 7, so we get 49, that is odd number. 49 is odd number. So this way we find out the square of the following digit, which one is the odd and which one is the even. We can classify on the basis of the square of the unit digit number. यहाँ पे अपन स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट नंबर का, और उस नंबर का यदि स्क्वायर यहाँ पे यदि अपन देखें 12, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, एंड 4 इज द इवन नंबर. यदि अपन कंप्लीट 12 का स्क्वायर देखें डेट इज 144, सो इट इज ऑल्सो बी अ even number. So on the basis of the unit digit number we will classify which one is the odd square and which one is the even. अपन दूसरा देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 13 and the square of 13 is 169, और simple if we do the square of unit place digit that is 9. So on the basis of unit digit के बेस पर अपन बता सकते हैं कि किस नंबर का स्क्वायर इवन होगा और किसका ऑड होगा. सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 431. सो हियर द यूनिट digit of 431 is 1, and the square of 1 is, and the square of 1 is 1, which is odd, जो कि क्या है odd. और अपन बोल सकते हैं hence the square of 431 would be an odd number, an odd number. So this way we will find out the square of the remaining number, which one is the even and odd. Now see the second one. The unit digit of number is 2826 is 6. And the square of 6 is 36, और 6 का स्क्वायर किया कितना आया 36, विच इज इवन, जो कि क्या है इवन है, विच इज. तो अपन बोल सकते हैं कि इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा इवन होगा. हेंस द स्क्वायर ऑफ would be यदि अपन लिखते हैं would be even number और would not be an odd number. Hence the square of 286 would not be an odd number. Odd number नहीं होगा, would not be an odd number. Same way we will do the remaining question. Third and fourth number is 7779. The unit digit is 9. जो यूनिट डिजिट है इसमें the unit digit of 7779 is 9.
जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 9 एंड द स्क्वायर ऑफ 9 इज एंड द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81 विच इज ऑड, जो कि क्या है ऑड। विच इज एन ऑड, हैंस तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा ऑड नंबर। हैंस द स्क्वायर ऑफ 7779 would be an odd number। क्या होगा would be an odd number। So same way you will do the last one। The digit is 4, यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 का स्क्वायर यदि आप करोगे स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड विच इज इवन, तो इसका क्या होगा स्क्वायर, जो स्क्वायर होगा 82004 का क्या होगा इवन नंबर, जो इसका स्क्वायर होगा डेट इज इवन नंबर। और अपन बोल सकते नॉट एन ऑड नंबर, क्या होगा नॉट would not be an odd number। Now let's see question number 4 of the exercise। Observe the following pattern and find the missing number। इनको ऑब्जर्व करके इन दोनों को अपन को क्या करना है फिल करना है। We all know about the square of the 11 is 121। Square of the 101 is given 10201। यहाँ पे 10 था, एक 0 आया, 121 के यहाँ पे दोनों साइड ऑन दी बोथ साइड ऑफ द 2 देयर इज दी 10 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 1 एट दी राइट साइड। देन यहाँ पे यदि अपन देखें 1001 यहाँ पे 20 थे तो 20 आर कम एट दी राइट साइड एंड 20 आर कम एट दी लेफ्ट साइड। राइट साइड पे भी 2 हैं, लेफ्ट साइड पे भी कितने हैं 2। यहाँ पे 40 हैं तो राइट साइड पे भी 4 आएंगे और लेफ्ट साइड पे भी कितने आएंगे 4 आएंगे। 4 एट दी राइट साइड एंड 4 एट दी लेफ्ट साइड। यहाँ पे 6 है तो यहाँ लेफ्ट साइड पे यदि अपन देखें तो कितने आएंगे 6 और राइट साइड पे भी 2 के कितने आएंगे 6। 1 2 3 4 5 6। So this way after observing the pattern we find out the square of the remaining number on the basis of the above pattern। यहाँ पे 40 थे तो 2 आया मिडिल में, 40 एट द राइट साइड एंड 40 एट द लेफ्ट साइड। यहाँ पे 60 थे तो 60 are at the right side of the 2 and 60 are at the left side of the 2। Now there is one more question on the basis of the pattern you find out the square of the given number। Again square of the 11 is 121। यहाँ पे 101 था, यहाँ पर भी अपना क्या है 101 so 10201, लेकिन यहाँ पे अपना था 1001, यहाँ पे लेकिन अपना क्या है 10,101। तो यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ 102030201। यहाँ पे 31 थे 3 आया और सेम पैटर्न यदि अपन देखें तो नीचे भी दिया गया है। यहाँ पे कितने 1 है 4 1 है, 3 0 है 4 1। तो इसी को यदि अपन फॉलो करें पैटर्न को तो इसके अकॉर्डिंग 1 0 2 0 3 0 4। उसके बाद अगेन अपन के लिए जो पैटर्न था सेम वे में अपन को अगेन लिखेंगे इसके पीछे तो 4 0 3 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1। एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया, दूसरी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया। तो यहाँ पर भी अपने 4 1 थे तो 4 तक गया, अगेन 1 तक आया, 1 से 4 4 से 1। यहाँ पे यदि अपन देखें तो 1 से 5 5 से 1। तो यहाँ पे जो अपना नंबर होगा यहाँ पर कितनी टाइम 1 आएगा 5 टाइम। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 टाइम 1 आया, ये अपना हो गया स्क्वायर। सो दिस वे वी फाइंड आउट द नंबर आस्किंग नंबर ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न। पैटर्न को फॉलो करके जो पूछे गए ब्लैंक्स थे वो अपन ने फिल किए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। पैटर्न को फॉलो करके जो मिसिंग नंबर है इनको आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे यदि अपन पैटर्न देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों
वे में अपन पैटर्न को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपन देखें तो सीधे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 3 4 5 6 देन 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पे यदि अपन देखें तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, तो क्या आएगा 4 5 जा 20 देन स्क्वायर ऑफ 20। यहाँ पे भी यदि अपन देखें 5 के टेबल में कितने टाइम में 30 आता है, 6 टाइम में, तो 6 5 जा 30। यहाँ पे अपन देखें 6 7 जा 42। यदि अपन ऊपर से इसके लिए मैच करें तो 2 3 4 5 6 यहाँ से भी आएगा। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है 2 + 4, 2 और 4 6 देन 6 देन 8 देन 12, कितना प्लस होगा 12, 10 होगा तो अपना आ जाएगा 30, देन 12 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 30 + 12 42। यहाँ पर भी यदि अपन देखें तो +4 हो रहा, देन +6 हो रहा, देन +8 हो रहा, देन +10 हो रहा, देन 10 के बाद क्या आएगा 12 प्लस करेंगे। और यदि अपन दूसरे तरीके से देखें इसको, यदि अपन यहाँ से देखें तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसमें से इसको क्या कर दो माइनस, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, 6 3 6 3 9, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 12 और 4 16, 16 में से 3 माइनस करोगे 13, 20 एंड 5 25, 25 में से 4 माइनस करोगे 21, 36, 36 में से 5 माइनस किया 31, 49, 49 में से 6 माइनस किया 43। सो दिस वे वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको ऐड किए बिना, जैसे अपन नॉर्मली ऐड करते 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, ऐसे ऐड किए बिना आपको इनका क्या निकालना है सम। तो एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर इक्वल होता था n²। सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इक्वल n²। यहाँ पे फर्स्ट से मतलब होता है आपके 1 से काउंट करोगे, तो यहाँ पे अपन ने देखा फर्स्ट 5 ऑड नंबर हैं, यहाँ पे यदि अपन देखेंगे तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर हैं, यहाँ पे यदि अपन ने देखा तो फर्स्ट 12 ऑड नंबर हैं। इनका आपको सम निकालना है। तो यहाँ पे अपन n की प्लेस पे जैसे अपन 5 रखें, यहाँ पे n कितने हैं अपने 5, तो स्क्वायर ऑफ 5 क्या होगा 25। तो इसका जो सम आएगा वो क्या आ गया 25। अपन कैलकुलेट करेंगे तब भी अपन को क्या मिला था 25। तो यहाँ पे अपन देखें देयर आर 5 ऑड नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज and square of 5 is 25, और जो 5 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा 25। स्क्वायर ऑफ 5 is 25। therefore जो इसका सम होगा 135 7 + 9 is 25। अपन को जो डिजिट काउंट करनी है, कितने नंबर है यहाँ पे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो इसका सम भी क्या होगा 100। देयर आर 10 odd numbers and square of 10 is square of 10 is 100, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। देयरफॉर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 is equal to 100. So by using the formula sum of the first n odd number equal n square, by using this formula we can also find out the sum of the first
एन ऑड नंबर, जितनी भी ऑड नंबर हैं कहाँ से होनी चाहिए, फर्स्ट से। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं सम के लिए। ऐसे में भी यदि अपन फाइंड आउट कर रहे हैं इस वे में, तो यहाँ पर भी कहाँ से स्टार्ट होंगे जे, 1 से। कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट है, यहाँ पर भी किससे स्टार्ट है, 1 से। देन वी यूजिंग this method or by using this formula to calculate the sum of the first n odd number. Now see the last one. How many odd numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 odd number and the square of 12 is 144. There are 12 odd numbers and the square of 12 is 144. The square of 12 is 144. Therefore 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 15 17 19 21 23 is equal to 144. So this way we find out the sum of the first n odd number. Now see the second last question of the exercise, question 8. There are two questions in this question. First one is express 49 as the sum of the 7 odd number. Express करना है कि 49 7 ऑड नंबर का सम है। जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में 5 ऑड नंबर का सम निकाला था, वो 25 आया था। यहाँ पे अपन को दिया है 49 आना चाहिए 7 ऑड नंबर का सम। वहाँ पे स्क्वायर किया था, यहाँ पे जो अपन को ऑलरेडी स्क्वायर दिया है। यहाँ पे यदि अपन देखें 49 इज द स्क्वायर ऑफ 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। तो अपन बोल सकते हैं कि hence या therefore 49 is the sum of 7 odd number। यदि अपन देखें तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 1 2 3 4 5 6 and 13 it's equal to 49। यदि इसका सम करो 3 और 1 4 4 5 9 7 16 9 25 25 and 24 it's equal to 49। सेम वे यहाँ पे जो 121 है वो क्या है, स्क्वायर है 11 का। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। उसमें अपन ने उल्टा किया था, इसका रिवर्स ऑपरेशन था। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। therefore 121 इज द सम ऑफ, जो 121 है वो क्या है, सम है, इज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। और अपन बोल सकते फर्स्ट 11 ऑड नंबर, शुरू के 11 ऑड नंबर का सम होगा। 1 प्लस therefore 1 प्लस 3 प्लस 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 then 11 इट्स इक्वल टू 121। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने 10 का निकाला था, 100 आया था, 12 का निकाला था, 144 आया था। यहाँ पे 11 का है तो 11 का कितना आएगा, 121। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन दे से फाइंड आउट द हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, और अपन बोल सकते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब दो लगातार नंबर दिए गए हों, 2 consecutive numbers are given and the square of these numbers are 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 and the square of 4 is 16। तो इनके बीच में जो नंबर आएंगे
आर दी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो क्या कहलाते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 11 भी नहीं है, 12, 13, 14 एंड 15। 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर आए? 6। कब? जब दो नंबर कॉन्सिक्यूटिव दिए हों, एक को यदि अपन n लें और दूसरा यदि अपना n+1 है, तो इनके स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं अपन को वो पूछा गया है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इट्स 2n। n इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 3, सो 6। 1 2 3 4 5 6। So this way we can calculate the how many non-perfect square number between square of the two consecutive number। दो लगातार नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा उनका 2 से मल्टीप्लाई करके या उसका डबल करके। नाउ सी दी फर्स्ट वन, सिंस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन, पहले अपन फॉर्मूला देखते हैं, बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर इट्स इक्वल टू 2n। क्या होगा? n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर इट्स इक्वल टू 2n। यहाँ से अपन n की वैल्यू देखें तो स्मॉलेस्ट नंबर को अपन क्या बोलेंगे? n। तो यहाँ पे देखें, दे आर 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दे आर 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 12 एंड between square of 12 and square of 13 it's equal to 2n, जहाँ पे n क्या है अपना? 12, that is 2 into 12 it's equal to 24। कितने होंगे? 24। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है अपनी? 12। स्मॉलेस्ट नंबर को अपन n लेंगे और दूसरा नंबर क्या होगा? n+1। ये फॉर्मूला यूज होगा कब? जब दो कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच के अपन को नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैलकुलेट करना होगा। ऑन दैट टाइम वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर। यहाँ पे यदि अपन अगला देखें तो यहाँ पे दे आर 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर between square of 25 and square of 26 is equal to 2n। और यहाँ पे जो अपना n है वो क्या है? n is 25, so the numbers are 50। क्या आ गया? 50 if n इक्वल टू 25। यहाँ पे जो अपना n था, सिंस n इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे जो अपना n था वो कितना था? सिंस n इज इक्वल टू 25, और दूसरा नंबर होगा डेट इज n+1। यहाँ पर भी अपना वही होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर numbers between square of 99 and 100, between square of 99 and 100 it's equal to 2n। और यहाँ पे n अपना क्या होगा? 99, तो 2 into 99 डेट इज 9 2 18 का 8, 1 कैरी, 18 और 1 19, 198। यहाँ पे यदि अपन n की वैल्यू देखें सो n इज इक्वल टू 99, सिंस n इज इक्वल टू 99। So this way we can find out the non-perfect square number between the square of the two consecutive number।
So hopefully you all are understand what we discussed today. Our exercise 6.1 is finished now, and in our next class we will solve the next exercise. Thank you and have a nice day.